Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Okay, second year class. Welcome to your English class, beta. And let's start our today's lesson, that is Mr. Chips. And as you know that we have read its first two chapters, and today inshallah we will start its third lesson. So all of you be attentive and open your books on lesson number third. You can see here. Okay, yes, this is chapter number third. Okay, beta. But before starting this lesson, as you know that I always tell you the similar meanings of the text because they are very much important regarding your paper point of view. Okay, beta. So you have to read that text, and it is not for translation. I am explaining the text just for your understanding. Okay, so what you have to do, you have to read the text very much clearly, and second thing that you have to learn the similar meanings because the text reading is quite important, as many questions they are often asked from your text. Okay, beside your exercise questions. Okay, beta. So have a look on the board, as I have already made a list of word synonyms that we will read the text today inshallah. So please have a look, all of you. Okay, beta, as you can see there is chapter 3 and word synonyms. So let's start. Sunny, bright, convenient, suitable, stroll, wander, mean to say जो आवारागर्दी करना या walk करना चलना फिरना, ठीक है. Crumpet, a soft cake. Soaked, wet, डूबा हुआ किसी चीज के अंदर, like cream or butter etc. Okay. Bottom, lowest, सबसे जो नीचे वाला होता portion. Shallow, not deep. Caddy, a small box. Next line beta. Session, meeting. Last, continue. एक last होता है ना बिल्कुल end वाला, और एक last होता है continue, जारी रखना. Glance, look. Remains, लिविंग्स, जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है, खाने पीने की अशिया में से बाकी मांदा बच जाती हैं या कोई और चीज़ उसकी रिमेन्स. थ्रैश, ब्लो. चीकी, रूथ. चैपल, टेम्पल. चैपल टाइम, वर्शिप टाइम. ओके बेटा, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ वर्ड सिनोनिम्स. ओके बेटा, चैप्टर 3. लेट्स स्टार्ट. It was a small but very comfortable and sunny room that Mrs. Wickett let to him. Okay, comfortable mean convenient, आरामदेह, ठीक है, comfortable. So it was a small but very comfortable and sunny room. Sunny means shiny, bright, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो चमकदार और आरामदेह कमरा था. चमकदार इस सेंस में कि उसमें डे लाइट, जो सनलाइट है बेटा, वो बहुत ज़्यादा आती थी. Okay, that Mrs. Wickett let to him. The house itself was ugly and pretentious. Okay, ugly था मीन टू से कि इतना अच्छा गुड लुकिंग नहीं था, लाइक बहुत अच्छे जो घर होते उस तरह से नहीं था, और ना ही और एक कैसा था, प्रिटेंशियस था मीन टू से कि अफेक्टेड था. अच्छा, इसका मैं बेटा लिखना भूल गई, सॉरी. प्रिटेंशियस मीन अफेक्टेड, या शोई मीन टू से कि जो जैसे जाहिर नमूदो नुमाइश होती है, ठीक है, उस तरह का था. बट दैट डिडंट मैटर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. इट वॉज कन्वीनियंट. कन्वीनियंट मीन suitable, very easy to live. Okay, that was the main thing, जो कि सबसे अहम चीज थी. For he liked if the weather were mild enough to stroll. Stroll mean walk, wander across to the playing fields in an afternoon. So अब Mr. Chips क्या करता बेटा, this chapter is belong to his retired life. ठीक है. Now the author is telling us that how Mr. Chips he spent his retired life days. Okay, so what did he do? That for he liked if the weather was mild. Mild means suitable, थोड़ा सा easy होता है ना, जैसे ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी. Then what did he do? To stroll, to walk, to wander across to the playing field. जो playing field थे बेटा, जो खेल के मैदान थे, वहाँ उनके आसपास जो है वो वॉक करता या आवारागर्दी करता, चलता फिरता in an afternoon, and watch the games. और वहाँ पे क्या करता, गेम्स देखता. He liked to smile and exchange a few words with the boys when they टच देयर कैप्स टू हिम. अब क्या करता कि वहाँ पे बेटा जो बॉयज थे उनके साथ मिलता, उनको देख के खुश होता, ठीक है, स्माइल पास करता. एंड और कब, जबकि व्हेन दे टच हिम
टच देयर कैप्स हिम, जब वो अपनी टोपियां उतार के उसको सलाम करती, ठीक है. ही मेड अ स्पेशल पॉइंट ऑफ गेटिंग टू नो ऑल द न्यू बॉयज एंड हैविंग देम टू टी विद हिम ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म. ओके बेटा, जैसे ही कोई नए स्टूडेंट्स क्लास में आते, ठीक है, स्कूल में आते, तो वो क्या करता कि जो है वो उनको टी पे इनवाइट करता, ठीक है बेटा. एंड he liked to smile and, अच्छा ये हो गया, with tea with him during their first term. अब उनकी फर्स्ट टर्म के दौरान बेटा उनको बुलाता और उनके साथ जो है वो चाय वगैरह पीता, ठीक है. सो नेक्स्ट, he always ordered a walnut cake with pink icing from Redaway's. बेटा रेडावे जो है नेम ऑफ शॉप है, वहां से जो है वो हमेशा केक मंगवाता, वॉलनट केक मंगवाता विद पिंक आइसिंग. उसे बेटा आइसिंग किस तरह की हुई होती थी, पिंक कलर की, ठीक है. सो अ लिटिल पाइल ऑफ देम in the village, and during the winter term there were crumpets too. और जब विंटर टर्म होती, ठीक है, सर्दियां होती, तो उनके ऊपर क्या होते हैं, क्रम्पेट. क्रम्पेट बेटा क्या बताया था, सॉफ्ट केक. ये भी एक केक है, कहता उनके साथ केक भी होते, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के. अ लिटिल पाइल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ द फायर, और फायर के सामने जो है वो उनका छोटा सा ढेर लगा देता. सॉक्ड, सॉक्ड मीन वेट, जो डूबे होते इन बटर, बटर में, सो दैट द बॉटम वन ले इन अ लिटिल शैलो पूल. कहते हैं कि जो उसकी जो सबसे बॉटम वाली लेयर थी वो एक शैलो से पूल में तैयार की जाती. मीन टू से कि जो बटर का उसने एक बनाया हुआ था, वेल सा बनाया हुआ था. मीन टू से कहने का मतलब ये है कि जो केक था दैट वाज सो मच स्पाइस, नॉट स्पाइसी बेटा, इट वाज सो मच स्वीट टू ईट, ठीक है. बस कहने का ये मकसद है कि वो बहुत ही मजेदार किस्म के जो केक थे वो उनको ऑफर करता. Yummy? Okay. His guests found it fun to watch him make tea, mixing careful spoonfuls from different caddies. अब कहता है कि उसके जो गेस्ट थे, गेस्ट कौन थे बेटा, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स थे, ठीक है. सो दे फाउंड इट अ वेरी टाइप ऑफ फन, ठीक है, उनको बड़ा मजा आता. दैट द ओल्ड मैन जो है ही वाज मेकिंग टी, मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल्स फ्रॉम डिफरेंट कैडीज. कैडीज मैंने आपको बताया बेटा बॉक्स, ठीक है. तो डिफरेंट बॉक्सेस से डिफरेंट जो स्पून भर भर के ना बेटा वो चीजें उसमें डालता. ओके. एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज वेयर दे लिव्ड एंड इफ दे हैड फैमिली कनेक्शंस एट ब्रुकफील्ड. और लड़कों से पूछता कि वो कहाँ पे रहते हैं, उनका कोई फैमिली कनेक्शन है ब्रुकफील्ड के साथ, ठीक है. इस तरह के क्वेश्चन करता बेटा. He kept watch to see that the plates were never empty, and punctually at 5 after the session had lasted an hour, he would glance at the clock and say, well, it's been very delightful meeting you like this. I'm sorry, you can't stay. So बेटा, अब आपको मैं एक बात मजे की बताऊं कि जो बेटा ये जो है ना फॉरनर्स, ये हम यूरोपियन कह सकते हैं या जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, अमेरिकन, बेटा ये दे डोंट माइंड. अगर उनको कह देते ना कि यस आई एम बिजी, आई कांट मीट यू, तो बेटा ये हमारे इस्लाम में भी है, ठीक है, कि जो है वो अगर कोई कह दे कि मैं इस टाइम जो है फ्री नहीं हूँ, या जैसे अब हम नॉक कर रहे हैं ना दरवाजा, तो आगे से कोई दरवाजा ना खोले, तो इस्लाम में क्या है कि जस्ट नॉक the door for 3 times, and if there is no voice, no reaction from inside the house, then leave the house. ठीक है बेटा. So these values of Islam, they have been adopted by these non-Muslims. ठीक है. So एंड ही वुड, तो फिर बेटा उनको जैसे ही 5 बजने में थोड़ा सा टाइम रहता तो उनको कह देता कि अब तुम लोग जो है वो ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं स्टे कर सकते, ठीक है. एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड विद देम इन द पोर्च, लीविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड टू द स्कूल विद देयर कमेंट्स. ठीक है. अब वो कहता उनको छोड़ आगे तक बेटा उनको छोड़ के आता, ठीक है, और जो पोर्चमैन से हाथ मिलाता, शेक हैंड्स विद देम इन द पोर्च, पोर्चमैन से हाथ मिलाता, लीविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड. अच्छा, अब वो जो है बेटा क्या करता, उनको सड़क के पार स्कूल की तरफ जाने देता उनको विद देयर कमेंट्स. और उनके कमेंट्स क्या होते हैं बेटा, डिसेंट ओल्ड बॉय, चिप्स गिव यू अ जॉली गुड ची एनी हाउ एंड यू डू नॉट नो व्हेन ही वांट्स टू यू टू पुश अवे. कहते तुम नहीं जानते कि किस टाइम जो है वो तुमको जाने का कहते. ठीक है बेटा. And Chips also would be making his commands to Mrs. Wicked when she entered his room to clear away the remains of the party. कहता कि मिस्टर चिप्स भी जो है वो मिसेस विकेट के साथ डिस्कस करता आफ्टर द पार्टी, जब वो रिमेन्स ऑफ द पार्टी जो लिविंग थिंग्स थी, मीन टू से कि जो चीज़ें बाकी मानना थी उनको साफ करने के लिए वो रूम में आती. A most interesting time, Mrs. Wicked. Young Branson tells me that his uncle was Major Collingwood. कहते हैं कि अब जो बेटा दिस इज द नेम ऑफ अ बॉय हु केम टू मीट हिम, यंग
ग्रैंडसन, ओके। उसने उसको क्या बताया कि मेजर कॉलिंगवुड, ठीक है, ही वाज द एक्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलिंगवुड वी हैड हियर इन, मतलब कि जो यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है, ऑफ नॉच टू मीन इट वाज अबाउट 1992 की बात है। आई थिंक इट वॉज डियर मी, आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल, कहते मुझे वो बहुत अच्छे से याद है। आई वॉज थ्रैश्ड हिम फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिम्नाजियम रूफ, तो कहते मुझे वो अच्छी तरह से याद है, मैंने क्या किया था एक दफ़ा उसको थ्रैश मीन ब्लो, पिटाई करना, ठीक है, कहते मैंने उसकी दफ़ा पिटाई की थी फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिम्नाजियम रूफ, जो जिम्नास्टिक का हॉल था बेटा, उसकी जो छत जो चढ़ने पर मैंने उसकी पिटाई की थी, टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर, वो किस लिए वहाँ पे गया था, इन ऑर्डर टू गेट अ बॉल, जो कि गटर में गिर गई थी। सो माइट हैव ब्रोकन हिज नेक, तो हो सकता है उसकी गर्दन टूट गई हो। द यंग फूल इडियट स्टूपिड बॉय, डू यू रिमेंबर हिम, कहते मैं याद है मिसेस विकेट, he must have been in your time, कहते वो तुम्हारे वक्त में था। मीन टू से मिसेस विकेट शी वाज आल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ ब्रुकफील्ड, ठीक है। Okay, Mrs. Wickett, before she had saved money, had been in charge of the linen room at the school. बेटा जो मिसेस विकेट थी वो भी वहाँ की एक एम्प्लॉय थी, क्योंकि वहाँ पे जो है वो लिनन रूम होता है, जिसमें वो ऐसी जगह जिसमें जो चादरें और तौलिए वगैरह जो है ना रखने की कमरा का जो इंचार्ज होता है उसको कहते हैं, ठीक है। सो बेटा दिस इज एनफ फॉर टुडे एंड इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी नेक्स्ट पेसेज टुमारो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।